بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی میری بیٹی کی ہے جس کی عمر صرف 9 سال تھی اور اس کا نام صبا تھا۔ میری بیٹی بہت ہی زیادہ پیاری تھی۔ ہم لوگ پہاڑوں پر رہتے تھے اور ہمارے پاس گزر بسر کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور کچھ جانور تھے جن پر ہم اپنا گزارا کیا کرتے۔ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ میرے بھائی کی بیوی بھی اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کا بھی ایک بیٹا تھا جس کو میں سنبھالا کرتی۔ لوگ کہتے تھے ہم دونوں بہن بھائی بہت ہی منحوس ہیں، کیونکہ شادی کے 2-3 سال بعد دونوں ہی بیوی اور شوہر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ہم دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ لیکن جب میرے بھائی کی بیوی فوت ہوئی اور کسی بیماری کی وجہ سے وہ اس دنیا سے نہیں گئی تھی بلکہ ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا اور میرے بھائی کی ٹانگ پر بھی چوٹ لگی تھی۔ اب اس کے چلنے میں بھی نقص آ گیا تھا اور زیادہ محنت مزدوری کا کام نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے مجبوراً چھوٹی سی بچی کو بھی کام پر لگانا پڑا۔ گھر میں جانوروں کا دودھ بھی خود ہی نکالا کرتی تھی، لیکن دودھ دینے کے لیے اپنی بیٹی کو بھیجنا پڑتا کیونکہ میں گھر گھر جا نہیں سکتی تھی۔ وہ یہ کام بہت خوش ہو کر کرتی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اس کی پڑھائی نہیں کروا رہے اور اسے کام پر لگا دیا، لیکن وہ اس کام سے خوش ہوتی۔ بہت ہی پیاری بچی تھی میرے شوہر کی آخری نشانی تھی۔ میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرے اوپر میرے بھائی کے بیٹے کی بھی ذمہ داری تھی اور میں ان کو چھوڑ کر کسی اور کا گھر نہیں بسانا چاہتی تھی۔ میرے بھائی نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ میرا بھائی بھی اسی لیے شادی نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ بھی یہی سوچتا تھا۔ ہمارے پاس ایک گائے تھی اور کچھ بکریاں تھیں، لیکن اس میں سے صرف ایک ہی بکری دودھ دیتی تھی۔ بکری کا دودھ مہنگا بکتا تھا اور وہی دودھ دینے کے لیے میری بیٹی جایا کرتی تھی۔ 3 سے 4 گھر تھے جہاں پر وہ جاتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ہماری بکری کچھ بیمار لگ رہی ہے۔ میں نے اس کا تھوڑا بہت علاج کیا جیسے کہ گھریلو ٹوٹکوں سے کیا جاتا ہے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے دودھ بہت کم کر دیا۔ میری بیٹی نے اس بکری کا نام لالی رکھا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم اس کو کبھی بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ لیکن جب صبا کو پتہ چلا کہ بکری بیمار ہے تو وہ بھی بہت پریشان رہنے لگی۔ لوگ شکایت کرنے لگے کہ دودھ کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں پر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بکری کا دودھ پلایا کرتے تھے تاکہ وہ طاقتور اور صحت مند رہے، اور بچے کو دودھ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک دن رات کو لالی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا۔ ڈاکٹر کو بھی بلا کر لائے تھے۔ اس نے بھی کوئی ٹوٹکا کیا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ اگر رات گزر گئی تو صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میری بیٹی میرے گلے لگ کر رو رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ کہیں اس کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، تم بھی تو بیمار ہوتی ہو، پھر رات کو دوائی دیتی ہوں تو صبح تک ٹھیک ہو جاتی ہو، تو وہ بھی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو صبح ہمارے لیے بالکل اچھی نہیں تھی کیونکہ ہماری بکری مر گئی تھی۔ میری بیٹی نے جب یہ منظر دیکھا تو رونا شروع کر دیا اور اتنی پریشان ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے تیز بخار ہو گیا۔ 3 دن تک وہ بخار میں تڑپتی رہی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ اگر ہم اس کے لیے ایک اور بکری لے کر آئے تو یہ بچی خوش ہو جائے گی، لیکن آج کل بکری خریدنا کون سا آسان ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھول جانے دو، کل کو کوئی اور بکری آ جائے گی تو وہ بھی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ پھر یہ دوبارہ سے پریشان ہو گئی اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ بھائی بھی میری بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا، اور سچ تو یہ تھا کہ ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ شاید ہم ایک بکری خرید پاتے، لیکن اس کے لیے ہم نے 7 سے 8 مہینے تک پیسے جمع کرنے تھے اور نہ جانے گھر کی کتنی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی۔ اب میری بیٹی بہت اداس رہتی تھی اور ہمیشہ پریشان نظر آتی۔ اس کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ پہاڑوں پر چلی جاتی اور دوسروں کی بکریاں دیکھتی رہتی۔ یہاں پر تقریباً سبھی یہی کام کرتے تھے، لیکن وہ اسکول بھی جایا کرتے تھے۔
मगर मेरी बेटी तो स्कूल नहीं जाती थी। फिर एक दिन हमने ऐसा मंजर देखा कि हम हैरान रह गए। हमारे घर में एक बकरी आई हुई थी जो बहुत सेहतमंद, मजबूत और कदावर किस्म की थी। मैंने इतनी बड़ी बकरी पहले कभी नहीं देखी थी, पर सुना ज़रूर था कि इतनी बड़ी बड़ी बकरियां होती हैं जो दिन में 4 से 5 किलो तक भी दूध देती हैं। हमारी बकरी तो 1-1.5 किलो दूध देती थी, वो भी हम लोगों ने लोगों के लिए रखा हुआ था। मैंने बकरी को देखा तो वह हमारे घर में मौजूद थी और मैंने गाय के खाने में से भी उसको चारा दिया तो वो मेरे पास आ गई। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो आराम से अपने सर पर हाथ फिरवाने लगी, जबकि जानवर किसी अजनबी के साथ इस तरह से पेश नहीं आता। ये तो बड़ी प्यारी थी, पर लगता है किसी और की थी। जब मैंने अपनी बेटी को जगाया तो वो भी बहुत खुश हो गई और उसने कहा कि ये मेरे लिए लाए हैं ना मामू। मामू ने कहा था कि वो मेरे लिए नई बकरी लेकर आएंगे, ये वही वाली है ना। मेरी बेटी तो खुशी से निहाल हो गई। आज मैंने न जाने कितने महीने बाद उसकी मुस्कुराहट देखी थी। फिर मैंने फौरन ये खबर सुना दी कि ये हमारी नहीं है, किसी और की है और हमारे घर में आ गई है। मेरा भाई उठा तो वो भी हैरान था। उसने कहा कि ऐसी बकरी तो मैंने पूरे गांव में किसी के साथ भी नहीं देखी, लगता है कहीं और से आई है। एक काम करते हैं, जब तक इसका मालिक इसे ढूंढता हुआ नहीं आता तब तक हम ही इसको पालते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को भी कहते कि ये तुम्हारी है तो वो झूठ बोल देता और कहता कि हमारी ही है और अपने पास रख लेता। लेकिन जब तक इसका असल मालिक नहीं मिल जाता हम इसको किसी और को नहीं दे सकते थे। इससे तो अच्छा था कि हम खुद ही उसको पाल लेते। मेरे भाई ने मेरी बेटी को कह दिया कि हाँ ये तुम्हारी है, तुम इसका ख्याल रखना और इसका दूध भी निकाला करना। मेरे भाई ने मेरी बेटी को बकरी का दूध निकालना भी सिखा दिया और खुद ही वो उसका ख्याल रखती और खुद ही दूध निकाल कर उसे लोगों को देकर आती। शाम हुई तो एक औरत हमारे घर आ गई। उसने आकर कहा कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, 2 दिन हो गए आपके घर से दूध ले रही हूँ। मैं तो डर गई। मैंने कहा कि लगता है कोई शिकायत लेकर आई है, क्योंकि मेरी बेटी ने अभी अभी ये काम सीखा था और अब हमें बातें सुनाएगी और इस गांव में जो मशहूर हो जाता था उसकी गलती फिर कोई नहीं भूलता था कि उसने कोई गलती की है। अगर ये बात सामने आ जाती है कि हमारे घर से सही दूध नहीं जाता तो हमारे घर कोई भी दूध लेने के लिए नहीं आने वाला था। मैंने उस औरत को बैठने के लिए कहा। उस औरत ने कहा कि जब से आपके घर से दूध लेकर जा रही हूँ मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। इतना अच्छा दूध तो मैंने आज तक नहीं देखा। उस दूध से इतनी खुशबू आती है और इतना गाढ़ा होता है कि पूरा 1 किलो पानी भी डाल दो तो ऐसा लगता है कि पानी डाला ही नहीं है। मैं अपने बेटे को पिला रही हूँ, उसका पेट अच्छी तरह से भर जाता है, वो सुकून से सो जाता है, बिल्कुल तंग नहीं करता। आज मैंने पुलाव बनाया था, आपकी बेटी के लिए भी थोड़ा सा लेकर आई हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मेहनत से काम करती है। अल्लाह आप लोगों को वसाइल दे, स्कूल में पढ़ाई भी करवाएं, बहुत समझदार है। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। ये उसी की बकरी के दूध की बात कर रही थी जो हमारे पास गलती से आ गई थी। मैं दिल में सोचने लगी कि जब ये बकरी चली जाएगी तब क्या होगा, लेकिन फिलहाल उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी। मैंने भी उसका शुक्रिया अदा किया और वो भी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। कहने लगी अब आधा किलो नहीं बल्कि पूरा 1 किलो दूध रोजाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। जब मेरी बेटी आई तो मैंने उसे वो पुलाव खिलाया, वो बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मैं इस बकरी का नाम भी लाली रखने लगी हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरी लाली वापस दे दी है। वो बहुत खुश थी। एक दिन मेरे भाई की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था, न जाने क्या हो गया था। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मसला क्या है। 2-3 दिन तक तो वो बेचारा ऐसे ही पड़ा रहा। फिर मज़ीद अच्छी डॉक्टर को बुलाया या फिर उसे शहर लेकर जाना पड़ा। जो थोड़े बहुत पैसे जोड़ कर जमा करके रखे थे वो सब उसमें लग गए, लेकिन फिर भी सुनने को कोई अच्छी खबर नहीं मिली। डॉक्टर का कहना था कि उसकी टांग में जो मसला था उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए तबीयत बहुत ख़राब है और तेज़ बुखार है। अगर इलाज नहीं किया तो टांग काटनी पड़ेगी और ये जो थोड़ा बहुत चलता है उससे भी महरूम हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया था। दवाइयाँ बहुत महंगी थी और बहुत एहतियात बताई गई थी। यानी मेरा भाई जो मेहनत मजदूरी का थोड़ा बहुत काम करता था वो भी अब नहीं कर सकता था
और उसकी दवा बहुत महंगी थी। मैं उसको घर वापस ले आई और सोचने लगी कि ये सब कैसे होगा। मेरी बेटी शाम को वापस आ जाया करती थी। काम भी उसने ख़त्म कर लिया, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान थी, हर तरफ से मेरे लिए परेशानी बनी थी। ऐसा लगता था कि सारी परेशानियों ने मेरा घर देख लिया है। बिलाखिर मैं सबा को ढूंढने के लिए चली गई, क्योंकि अब शाम होने वाली थी। पर अभी मैं आधे रास्ते तक गई थी कि मुझे वो मिल गई। उसके हाथ में एक बड़ी सी गडवी थी, जिसके अंदर उसने दूध निकाला था। पहले तो मैंने उस पर गौर नहीं किया और उसका हाथ पकड़कर फौरन घर ले आई। मैंने कहा कि पहले मैं इतनी परेशान हूँ, तुम कहाँ चली गई थी? तो वो कहने लगी कि मैं वो पहाड़ पर गई थी। मैंने कहा कि बस करो, पहाड़ पर मत जाया करो, किसी के घर नहीं जाओगी। तुम्हें पता है कि हमारी किस्मत बड़ी खराब है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी वापस घर आ गई और उस गडवी को धोने लगी। मैंने कहा कि ये कहाँ से मिल गई? तो वो कहने लगी कि पहाड़ पर मिली है मुझे, दूध निकालने के काम आएगी। मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। एक छोटे से बर्तन के घर आने से भला मुझे क्या खुशी होने वाली थी। मुझे उस वक्त पैसों की ज़रूरत थी, काम की ज़रूरत थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। हमारी गाय भी आजकल ज़्यादा दूध नहीं देती थी। बकरी का दूध बिक तो रहा था, लेकिन उससे घर नहीं चलता था। मैं सारी रात रोती रहती। अब तो मेरा भाई भी मदद करने के लिए नहीं था, इसलिए मेरे ऊपर बहुत काम पड़ गया था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो बकरी का दूध निकाले और घर दे आए। वो दूध निकालने के लिए बैठ गई। वो उस गडवी को इस्तेमाल कर रही थी। समझ नहीं आती थी कि कैसे सब कुछ करूं। भाई भी बहुत परेशान था। वो मुझसे पूछता कि सब कुछ ठीक है। मैं कहती कि सब ठीक है, बकरी बहुत ज़्यादा दूध दे रही है, तुम्हारी दवाइयाँ भी आ जाएंगी और घर भी चल जाएगा। तुम थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी दूध की डिलीवरी देने के लिए चली गई और जब वापस आई तो मैं हैरान रह गई। उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे। मैंने कहा कि ये इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई हो? इतने तो पैसे नहीं बनते थे। उसने कहा कि अम्मी, दूध ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मैंने सब लोगों को दे दिया, उन्होंने मुझसे ले भी लिया और ज़्यादा पैसे भी दिए हैं। वो आंटी जो उस घर में रहती है ना, वो कह रही थी कि मुझे रोज़ का 2 किलो दूध चाहिए और दूसरी भी कह रही थी कि मुझे 2 किलो चाहिए। मैंने कहा तो उनको हाँ बोल कर आ गई हो, हम कहाँ से लाएंगे इतना दूध? बकरी को क्या खिलाएंगे कि वो इतना ज़्यादा दूध दे? वैसे भी हमारी अपनी नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मेरी बेटी को जाहिर है बात करने का क्या पता था। वो तो ना समझती, वो तो छोटी बच्ची थी। लेकिन मैंने कहा कि अब लोगों से वादा करके आई है, लगता है दूध में पानी मिलाकर देना पड़ेगा। हम लोगों ने कभी दूध में मिलावट नहीं की थी, लेकिन अब शायद ये भी करना पड़े। सुबह मेरी बेटी बकरी का दूध निकाल रही थी तो मैं पानी का जग भरकर उसकी तरफ गई। मैंने सोचा कि इसमें पानी मिला देती हूँ। वैसे भी औरत कह रही थी कि दूध बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। हमारे बाप दादा भी यही काम किया करते। उन्होंने सारी जिंदगी एक कतरे की मिलावट नहीं की थी। वो कहते थे कि जब मिलावट की जाती है तो घर में अजाब आने लगते हैं, और हमारे घर में तो पहले ही इतने अजाब आए हुए थे। इसीलिए मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मैंने वो पानी गिरा दिया। मेरी बेटी दूध देने के लिए चली गई। आज फिर वापस आई तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे। मैं हैरान हो रही थी। मैंने कहा कि कहीं इसने खुद ही तो नहीं पानी मिला लिया। उसने कहा, अम्मी, दूध ख़त्म ही नहीं होता है। मैंने कहा, क्या मतलब दूध ख़त्म नहीं होता? ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा कि दूध ख़त्म नहीं होता है, मैं दूध डालती जाती हूँ, दूध बर्तन में से निकलता ही जाता है। अब तो एक नया घर भी मिल गया है। मुझे उस औरत ने कहा है कि वो आकर आपसे बात कर लेगी, उसको भी 2 किलो दूध चाहिए। मुझे मेरी बेटी की बातें समझ नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि वो लोगों से झूठ बोल रही है, उनको गलत उम्मीद दे रही है। जब एक चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो हम इतने सारे घरों को कैसे दे सकते हैं? शाम को औरत भी आ गई और उसने मुझसे बात कर ली। उसने कहा कि वो काफ़ी अच्छे खाते पीते घर की औरत है, इसीलिए उसे रोज़ाना 2 किलो दूध चाहिए। उसके 2 बच्चे हैं जिनको वो दूध पिलाना चाहती है। बच्चे बहुत तंग करते हैं, बच्चों का पेट नहीं भरता। लेकिन दूसरी औरत ने कहा कि ये दूध पीने से बच्चों का पेट भर जाता है और वो सुकून से सो जाते हैं, इसीलिए ज़रूर उसे दूध चाहिए।
उसे अपने भाई के बारे में बताया तो उसने मुझे कुछ पैसे भी दे दिए। मैंने कहा कि आप ये पैसे एडवांस मुझे क्यों दे रही हैं? उसने कहा कि नहीं नहीं, ये एडवांस नहीं है, दरअसल हमने ज़कात निकाली और आप लोगों को ज़कात लगती है, इसीलिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप अपने भाई की दवाई लीजिएगा तो हमारी ज़कात भी हो जाएगी और आपका भी फ़ायदा होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि अगर इसको हम लोग दूध नहीं दे पाए तो फिर ये क्या सोचेगी हमारे बारे में कि किस तरह के लोग हैं। वो औरत खुश हुई और वहाँ से चली गई। अब मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर मैंने अगले दिन ऐसा मंजर देखा कि मैं वाकई हैरान रह गई। मेरी बेटी उस गडवी में दूध निकाल रही थी और वो भर चुकी थी। उसने दूसरे बर्तन में डाला तो उसमें से दूध निकलता ही चला जा रहा था। इतनी तो उसके अंदर जगह नहीं थी जितना कि उसमें से दूध निकल रहा था। मैं हैरान रह गई। मेरी बेटी को मैंने देखा और मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि देख ले अम्मी, मैं यही तो आपको कह रही थी कि दूध खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं भी हैरान रह गई। वो पूरी बाल्टी दूध से भरती जा रहे थे। इतना ज्यादा दूध तो एक बकरी से भी नहीं निकल सकता, इतना दूध तो हमारी गाय भी नहीं देती। खैर, मैंने बेटी से कहा कि वो जिस घर से भी दूध का वादा करके आई है वहां दूध देने के लिए जाए और पैसे भी ले लिया करे। मेरी बेटी भी खुशी खुशी चली गई और अपनी बाल्टी में काफी सारा दूध अभी पड़ा हुआ था। मैंने उसमें से थोड़ा सा दूध लिया और उसको उबाला। मैं हैरान थी कि इतना गाढ़ा दूध मैंने आज तक नहीं देखा था। उसके बाद मैंने उसकी चाय बनाई और जब चाय बनी तो मैं हैरान रह गई। इतनी मज़ेदार चाय तो मैंने आज तक नहीं पी थी। उसके अंदर से बाकायदा खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी थी। मैंने उस बकरी की तरफ देखा। उसको हमारे घर में 1 महीना हो गया था और हमने उसको सादा खुराक खिलाई थी जो अपनी गाय को खिलाया करते थे। लेकिन जब गाय दूध देती थी तो बिल्कुल पतला होता, उसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती। लेकिन वही सब कुछ खाकर ये बकरी दूध दे रही थी। मैं उसके पास गई और उसके सर पर हाथ फिरा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रही है। उसकी आंखों में अजीब तरह की चमक थी, जैसे वो मुझे ये कहने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गड़वी एक पहाड़ से मिली थी, वो भी घर में पड़ी थी। मैंने उसको धोया और उसके अंदर पानी डाला और फिर मेरे सामने ऐसा मंजर आया जो मैंने कभी भी देखने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने उसको पानी से भरा, पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर तो मैं हैरान ही रही। उसके बाद मेरे घर में थोड़ी सी दाल पड़ी थी जो मैंने उस बर्तन के अंदर डाल दी। उस बर्तन से जब मैं पलटने लगी तो दाल की मिकदार में इजाफा हो गया। वो बर्तन मेरे हाथ से गिर गया और मेरा वजूद कांपने लगा। मैं डर सी गई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे भाई ने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा कि नहीं, लगता है बाहर कोई आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो ये एक शख्स था जो हमारी ही तरह के गांव में वो दूध बेचा करता था। उसने कहा कि तुम्हारे भाई से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि उसकी तबीयत ख़राब है। मेरे भाई ने आवाज़ दी, उसको भेज दो अंदर। वो जाग गया था। बंदा अंदर गया और मेरे भाई से कुछ बात करने लगा। थोड़ी देर बाद लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगी। उसने कहा कि तुम शहर गए थे ना, लगता है वहाँ से कोई ऐसा केमिकल लेकर आए हो जो दूध में डाल रहे हो, तभी तो तुम्हारे दूध के पीछे सारा गांव पागल हुआ पड़ा है और मेरी दुकान पर कोई भी नहीं आता। मेरा तो कारोबार बंद हो गया, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मुझे बताओ तुम दूध में क्या डालते हो? मैंने भी वही डालना है। मेरे भाई को तो सारे मामले का वैसे ही नहीं पता था। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानवर को अच्छी खुराक भी नहीं खिलाते, रोटियां भी नहीं खिलाते। उसने कहा कि झूठ नहीं बोलो, सारा गांव यूं ही तारीफ नहीं करता है। जब लड़ाई ज्यादा पड़ने लगी तो मैं कमरे में आ गई। मैंने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, अब उसको परेशान कर रहे हैं। आप कौन होते हमारे घर में आकर ये सवाल करने वाले? अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? जब हमारा कारोबार नहीं चल रहा था तो हम तो आप लोगों के घर नहीं आए थे। वो शख्स लाजवाब हो गया और वहां से चला गया। उसने कहा कि मैं पता लगा कर ही रहूंगा, लेकिन उसे क्या पता चलता, जबकि कुछ था ही नहीं। मेरे भाई ने पूछा तो मैंने कहा कि हमें वो नई वाली बकरी बहुत अच्छा दूध देती है, सब तारीफ करते हैं और हमसे जल रहा है ये भी, और कोई बात नहीं है। मैंने अपने भाई को तसल्ली दी और वापस किचन में आई।
मैंने फिर से उस बर्तन के अंदर कोई और चीज़ डाली और हैरान रह गई कि इस दफ़ा फिर उसकी मिकदार बढ़ गई थी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए और मैं परेशान हो गई कि ये क्या है, ये कैसा जादू है। ये तो जादू ही था, ऐसा नहीं हो सकता था। मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था और इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि साथ वाली औरत के घर चली गई। उसको भी जाकर सारी बात बता दी। वो औरत भी हैरान रह गई, उसने भी ये बर्तन देख लिया। उस बर्तन में मुख्तलिफ चीज़ें डालकर उनकी मिकदार बढ़ाने लगी। उसने कहा कि ये बर्तन मेरे घर छोड़ जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं छोड़ सकती, ये तो मेरा है, मेरी बेटी का है, उसको मिला था। लेकिन वो तो मेरे साथ झगड़ा करने लगी। उसने मुझसे बर्तन छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि तुमने ज़्यादा बातें की तो मैं लोगों को बता दूंगी कि तुम मेरे घर से चोरी करने के लिए आई थी। ज़ाहिर है ऐसी चीज़ देखकर किसी की भी नीयत बदल सकती थी। मैं तो बहुत परेशान थी और किसी को भी ये बात नहीं बता सकती थी। बर्तन मेरे हाथ से निकल गया। अगर ये बात पूरे गांव में फैल जाती तो बहुत मसला बनता। मेरी बेटी घर आई तो मैंने उससे पूछा कि उसने ये बर्तन कहाँ से लिया था। तो उसने कहा, मैंने भी आपसे झूठ बोला था, ये मुझे मिला नहीं था, मुझे एक औरत ने दिया था। मैंने कहा कि कौन सी औरत? उसने कहा कि वो पहाड़ पर रहती है और लाली के मर जाने की वजह से मैं बहुत परेशान थी और रो रही थी। तब उसने मुझे कहा था कि तुम ये रख लो, इसमें दूध निकाला करना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बहुत लंबे कद की थी और बहुत खूबसूरत थी। वहाँ पर उसका घर भी था और वो रोज़ ही मुझसे दूध लिया करती है। ये जो 2 किलो दूध के मैं ज़्यादा पैसे लेकर आती हूँ ना, ये मुझे वही देती है। मैंने कहा कि चलो मुझे उसके घर ले जाओ। मेरी बेटी ने कहा कि आ जाएं। मैं अपनी बेटी के साथ चल पड़ी और मेरी बेटी पहाड़ की तरफ जा रही थी। पहाड़ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। जो लोग रहते थे उनके घर नहीं थे, बल्कि उन्होंने कच्चे पक्के घर बना रखे थे। वो इतने अमीर नहीं थे कि वो इतना महंगा दूध खरीदते, और ना ही वो लोग खरीदते थे क्योंकि उनके अपने जानवर होते थे। मेरी बेटी चलती जा रही थी, सारे घर तो पीछे रह गए। वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई थी। हम लोग पहाड़ी लोग थे, हमको पहाड़ों पर चढ़ने में कोई मसला नहीं होता था। लेकिन जब सामने का मंजर देखा तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि ये उस औरत का घर है। मैंने अपनी बेटी को ऐसे देखा जैसे वो मेरी बेटी नहीं कोई और है। सामने घर था लेकिन ये किसी के भी रहने के काबिल नहीं था। ये तो कोई पुराने ज़माने का घर था जब टूट फूट का शिकार हो गया था। उसे तो खंडर कहना बेहतर होगा। उस घर के बारे में मैं अच्छी तरह जानती थी। मेरे तो हाथ पांव फूलने लगे और मैंने कहा कि चलो यहाँ से वापस चलो। मेरी बेटी ने कहा कि आपने उस औरत से नहीं मिलना है। मैंने कहा कि पागल, यहाँ कोई औरत नहीं रहती है, यहाँ आसेब रहते हैं, चलो यहाँ से। मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई और काफ़ी परेशान हो गई। मेरी बेटी ने उस बर्तन के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि वो एक आंटी ले गई हैं। मेरी बेटी ने कहा कि लेकिन जिस औरत ने मुझे बर्तन दिया था उसने कहा था कि आपने किसी को भी नहीं देना, फिर आपने उसे क्यों दिया, अब क्या होगा? मैं दोबारा हमसाइयों के घर गई और उससे कहा कि मेरा बर्तन वापस कर दो, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। वो इस तरह पेश आ रही थी जैसे मुझे जानती नहीं थी, जबकि वो मेरी अच्छी दोस्त थी। शायद वो भी मजबूर थी क्योंकि उसके भी काफ़ी सारे बच्चे थे और उसके घर में भी बहुत गुर्बत थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे हाथ इतनी अच्छी चीज़ लगी और मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने उस चीज़ को गंवा दिया था। जब आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं हैरान थी, लेकिन मेरा भाई नहीं जागा, जबकि वो छोटी छोटी आवाज़ों पर भी जाग जाया करता था। मेरी बेटी भी सुकून से सो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी हमसाई सामने खड़ी थी। उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे, कहीं कहीं से फट भी चुके थे। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और बाल भी बिखरे हुए थे। उसकी सांस भी फूली थी और वह अजीब तरीके से हाँफ रही थी, जैसे भाग कर यहाँ पर आई थी, जबकि उसका घर बिल्कुल करीब था। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, खैरियत तो है, अंदर आओ। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगी, ये लो तुम अपना बर्तन वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये बर्तन। मैं हैरान थी कि अभी तो ये बर्तन देने पर राजी नहीं थी, मगर अब ये खुद लेकर आ गई है। वो कहने लगी कि ये लो, और वो इस तरह पेश आने लगी जैसे ये बर्तन नहीं कोई मौत की चीज़ है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने कहा कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती।
اس کو मुझसे दूर रखो और फिक्र ना करो, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। समझो तुम आज मेरे पास आई नहीं थी, मैंने इस चीज़ को कभी देखा ही नहीं था। मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, मुझे कभी दोबारा ना बुलाना। उसने बर्तन मेरे हवाले कर दिया और वहाँ से जाने लगी तो मैंने महसूस किया कि उसके पाँव में भी कोई मसला था। ऐसे लगता था कि उसे किसी ने ज़मीन पर गिरा कर मारा था। वो अजीब सी चलती हुई वहाँ से चली गई। मैं भी हैरान थी, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बर्तन मेरे पास आ गया है। लेकिन मेरी बेटी कह रही थी कि उसे ये बर्तन किसी औरत ने दिया है और वो लोग उससे दूध पी लेते हैं। पर जो घर उसने मुझे दिखाया था वहाँ तो कोई औरत नहीं रहती थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी के पीछे कोई रूह लग गई थी और अब वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी? लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पहले हमें ये बकरी मिली जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। ऐसी बकरी हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी और उसका दूध भी ऐसा था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, ना पिया था। फिर मेरी बेटी को ये बर्तन मिल गया जिसके अंदर जो भी चीज़ डालो डबल हो जाती। और अब मेरी बेटी ये कह रही थी कि कोई औरत उससे दूर रहती है जो पहाड़ पर बने हुए खंडर में रहती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। मेरी बेटी सो रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और सोचा कि ये तो मासूम है, कहीं इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं कोई और मखलूक उसे उठाकर अपनी दुनिया में न ले जाए, कहीं ऐसा कुछ न हो जाए जिसको मैं कभी भी ठीक ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मैं वाकई मनहूस थी। सोचा था कि अपनी बेटी को कहूँगी कि वो घर से कहीं भी नहीं जाएगी, लेकिन सुबह आँख खुली तो वो पहले ही अपना काम करने के लिए जा चुकी थी। मैं बहुत परेशान थी। जब वापस आई तो मेरी जान में जान आई। मैंने उससे कहा कि आइंदा तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं खुद जाया करूँगी। उसका कहना था कि मुझे जाने दिया करे, मैं पूरा दिन घर में बैठकर क्या करूँगी। मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया। मैंने कहा कि घर में बैठकर लोग क्या करते हैं, बाकी बच्चे भी तो बाहर नहीं जाते। तब बेटी ने ऐसी बात की कि मेरा दिल बैठ गया। उसने कहा कि बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो आप तो मुझे स्कूल भी नहीं भेजती। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोना शुरू कर दिया। आज पहली दफ़ा उसने मुझसे शिकवा किया था। आखिर तालीम हासिल करना उसका भी तो हक था। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी कि जिस औरत ने वो बर्तन मुझे दिया था, मैंने उसको अपने मामू के बारे में बता दिया। वो कह रही थी कि मामू को भी दूध पिलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि कौन सी औरत? वही जो पहाड़ पर रहती है। उसने कहा कि हाँ, वही जो पहाड़ पर रहती है। उसके काफ़ी सारे रिश्तेदार भी हैं, वो बहुत अच्छी है। जब भी जाती हूँ वो मुझे बहुत अच्छी सी मिठाई भी देती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसकी बात मान ली। मैंने आज अपने भाई को भी उसी बकरी का दूध पिलाया। मेरे भाई ने कहा कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बेच दो तो घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो ये दूध पी लो, घर में भी पैसे आ जाएंगे। उसने कहा पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं। उसने दूध पिया और वो बेहतर नज़र आने लगा और सुकून से सो गया। एक हफ्ते के बाद मैं उसे अस्पताल ले गई जो कि शहर में था, तो डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उसके ज़ख्म में इन्फेक्शन हुआ था, वो ठीक हो गया, ज़ख्म पूरी तरह से भर गए और अब ये अपने पैरों पर चल सकते हैं। मैं तो वाकई हैरान थी। 5-6 महीने से मैं अपने भाई का इलाज करवा रही थी, उसे दवाइयाँ लेकर दे रही थी, लेकिन एक हफ्ता दूध पिलाने की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा भाई भी हैरान था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। मैं सोच रही थी कि उसको बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। जाने वो यकीन करता या नहीं। वो पहले से बेहतर हो गया था, तो ऐसा लगता था कि उसकी कभी टांग टूटी नहीं थी और उसने 6 महीने की बीमारी काटी है। ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल ठीक है। मेरा भाई फिर से काम करने लगा। मैंने उसे कहा कि वो आराम करे, पर उसका कहना था कि मुझे मेरे अंदर बहुत ताकत महसूस हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। वो फिर से काम पर जाने लगा। मेरी बेटी कहती थी कि उस खंडर वाले घर में रोज़ 2 किलो दूध देकर आती है। एक दिन मैंने अपनी बेटी का पीछा करने के बारे में सोचा कि हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो मुझे पता चल जाए। मेरी बेटी ने उस दिन शायद झूठ बोला हो कि वो किसी और घर में जाती हो, शायद, क्योंकि मेरी बेटी का किसी के भी घर में जाना और फिर उसके लिए झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं थी। मैं उसका पीछा करने लगी।
पहले वो घरों में गई जिनके बारे में मुझे पता था। उसने लोगों को दूध दिया और फिर आखिरी दफ़ा वो उसी तरफ चल पड़ी जहाँ वो मुझे लेकर गई थी। वो उसी पहाड़ की तरफ जा रही थी और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वो उस घर की तरफ बढ़ी और ऐसे लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन वहाँ पर तो कोई दरवाज़ा ही नहीं था। फिर उसने किसी को मुस्कुरा कर देखा और उससे बातें करने लगी, फिर अंदर चली गई। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। मुझे मेरी बेटी नज़र नहीं आ रही थी। पता नहीं वो अंदर क्या करने लगी थी। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी वापस आई तो बर्तन को देखकर ऐसा लगता था कि खाली है और उसके हाथ में पैसे थे। इसके अलावा उसके हाथ में एक मिठाई का टुकड़ा था जिसको वो खाते हुए घर की तरफ रवाना हो गई। मैं उसकी तरफ जाने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे बचपन की बातें याद आने लगी जब हमारे माँ बाप ने बताया था कि ये जगह आसेब ज़दा है और यहाँ पर जिन्नात रहते हैं, इसीलिए यहाँ कोई बच्चा नहीं जाता। इस पहाड़ पर कभी कोई नहीं आता था, तो घर के अंदर जाना तो बहुत दूर की बात। फिर जिस चीज़ से अब बचपन से डर रही हूँ उसके हवाले से कभी बहादुर नहीं हो सकते। लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी की जान से ज़्यादा तो कुछ भी अहम नहीं था। मैं भी उस घर की जानिब चल पड़ी और अंदर दाखिल हो गई। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे और दिल ही दिल में जितनी भी सूरतें थी मैं वो सारी पढ़ती जा रही थी। मैंने आसपास देखा। उस इमारत की दीवार टूटी हुई थी, दरवाजे टूटे थे, ज़मीन पर पत्थर पड़े हुए थे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं रह सकता था। ऐसा भी नहीं हो सकता था कि किसी राह चलते इंसान ने उसको अपना ठिकाना बना लिया हो, क्योंकि ऊपर छत तो बिल्कुल खाली थी और सर्दी के मौसम में यहाँ रहना बिल्कुल ही मुश्किल था। मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी झूठ बोलती है, उसने दूध यहीं कहीं गिरा दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और फिर उसे वो पैसे और मिठाई किसने दिए थे? मेरा तो दिमाग घूम रहा था जब अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बुरी तरह से डर कर चौंकी और पलट कर देखा तो वो एक औरत थी। मेरी बेटी ने जिस औरत का नक्शा मुझे बताया था ये बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। मेरी बेटी ने कहा था कि उसका कद बहुत लंबा है, उसने काले रंग के कपड़े पहने होते और वो बहुत खूबसूरत थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। ये वही औरत थी। मैं बुरी तरह से डर गई। मैंने कहा कि कौन हो तुम? मेरा लहजा मेरे अल्फाज का साथ नहीं दे रहा था। उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसको तुम तलाश करने के लिए यहाँ आई हो। मैं समझ गई थी कि वो कोई इंसान नहीं है। मैंने कहा कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? मेरे दिमाग में तो यही बात थी कि जब जिन्नात किसी इंसान के पीछे पड़ जाते हैं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। उसने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरी ज़ात से तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। मेरे कोई बच्चे नहीं है, इसीलिए मैं उसे अपनी सगी औलाद समझती हूँ। वो हमेशा यहाँ पर आया करती थी। मैं कभी कभी उससे मिलती थी, लेकिन वो बुरी तरह से रो रही थी। उसने कहा कि मेरी बहुत प्यारी बकरी मर गई और हमारे घर में भी बहुत तंगी है। मेरे मामू भी बीमार है। मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने तो मदद करने की भी इजाज़त नहीं दी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। तुम उसकी माँ हो ना, तुम्हें तो पता है कि वो कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी बच्ची है। इसी तरह से मैं भी अपने दिल में उसके लिए माँ वाले जज्बात रखती हूँ। मैंने अगले ही दिन तुम लोगों के घर पर एक बकरी भेज दी थी जो बहुत अच्छा दूध देती है। वो मैंने ही भेजी थी और उसके बारे में कभी भी कोई मशकूक नहीं होगा और किसी को नहीं पता चलेगा। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने उसे अपने पास ही रख लिया। उसके बाद भी मेरी प्यारी बेटी सबा परेशान थी तो मैंने उसे वो बर्तन दे दिया। वो बर्तन मेरे घर का बर्तन है। हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं। कभी कभी ये चीज़ें हमसे चुरा ली जाती हैं और इधर उधर हो जाती हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में तुमने कहानियाँ भी सुनी होगी। जब तुम्हारी हमसाई ने तुमसे वो बर्तन चुरा लिया और तुम्हें घर से निकाल लिया तो मैं वो सारा मंजर देख रही थी। इसीलिए उसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए मुझे खुद ही वहाँ जाना पड़ा। वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लालची इंसान के साथ वैसे भी कुछ अच्छा नहीं होता। वो बर्तन मैंने तुम्हारी बेटी के लिए दिया था कि तुम लोग घर से गुर्बत ख़त्म कर दें। उस प्यारी बच्ची के छोटे छोटे ख्वाब हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके सब ख्वाब पूरे करो। शायद वही बात कर रही थी कि मेरी बेटी भी स्कूल जाना चाहती थी। मैंने कहा कि
اس کا مطلب تم انسان نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادی ہوں۔ یہاں پر میرا پورا خاندان رہتا ہے، ہمارا گھر بہت بڑا ہے، جو لوگوں کو تو کھنڈر دکھائی دیتا ہے لیکن اصل میں یہ ایک بہت بڑا محل ہے۔ تمہاری بیٹی کو بھی نظر آتا ہے، وہ یہاں آتی ہے، میں دودھ دے کر چلی جاتی ہے، میں اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے دیتی ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اس کو یہاں پر کھنڈر دکھائی نہیں دیتا بلکہ ایک گھر دکھائی دیتا ہے، پر وہ بچی ہے کہ یہ باتیں کسی کو بتا نہ لے، اسی لیے اس کو بھی آہستہ آہستہ سمجھانا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ تم نے ہماری کتنی مدد کی ہے۔ نہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا بھائی بھی بستر پر تھا لیکن اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ تمہاری بیٹی کے لیے کیا ہے کیونکہ میں اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ بھی دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ تم لوگ یہ گاؤں چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تم لوگ جہاں بھی جاؤ گے تم لوگوں کی مدد ہو جائے گی، میں وعدہ کرتی ہوں تم لوگوں کی مدد کروں گی، تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے پیچھے لوگوں کی بہت نظر لگی ہے، تمہارے پاس سب کچھ تھا، تمہارے ماں باپ امیر تھے، دونوں بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی، کسی نے تم لوگوں پر بری نظر ڈالی تھی، اسی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم اپنی بیٹی کو لے کر کہیں اور کسی اچھی جگہ پر جاؤ تاکہ وہ اچھے اسکول میں جا سکے، اور وہ بہت سمجھدار اور پیاری بچی ہے، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں مدد کروں گی، اس سے بھی زیادہ مدد کروں گی، اور تم لوگوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے ابھی بھی اس سے ڈر لگ رہا تھا، مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے ذریعے ہی اللہ تم لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ تم اس برتن کو استعمال کرو، اس میں جو چیز ڈالو گی وہ مقدار سے بڑھ کر باہر نکلے گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم اس میں صرف کھانے پینے کی چیزیں ڈالو۔ مجھے اس عورت کی بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی اور کچھ دن بعد میں اپنے بھائی کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس کے بعد ہم اس برتن میں جو بھی چیز ڈالتے وہ مقدار میں بڑھ جاتی، ہم نے اس میں پیسے ڈالنا شروع کر دیے، ہمارے پاس بہت ساری دولت آ گئی، ہم نے اپنا چھوٹا سا گھر بھی بیچ دیا اور گائے بھی بیچ دی، لیکن اس بکری کو نہیں بیچا۔ یہ گاؤں چھوڑ کر ہم لوگ شہر چلے گئے، وہاں جا کر ہم نے چھوٹا سا گھر بنا لیا، وہ بکری آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے صبا کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میرے بھائی کا یہاں پر کاروبار بھی ہے، اس نے ایک اچھی سی دکان بنا لی ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ چیزیں بیچا کرتا ہے، اور میں نے اس کے لیے ایک لڑکی بھی دیکھی ہے جس کے ساتھ میں نے اپنے بھائی کا نکاح کر لیا ہے، اور 2 ہفتے بعد شادی بھی ہو جائے گی۔ اس گھر میں اس کی بیوی آ جائے گی۔ میری عمر ابھی صرف 27 سال ہے۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ میری بھی شادی کرے گا، لیکن ابھی میں نے اس بارے میں ہاں نہیں کیا۔ میں اپنی ساری زندگی اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ آج بھی گاؤں میں لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں کہ یہاں پر دودھ بیچنے والی ایک عورت اور اس کی پیاری سی ایک بیٹی رہا کرتی تھی، جو کہ اتنا اچھا دودھ دیتی تھی سب کو کہ بیمار بھی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ مجھے تو اب بھی یہ کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کا خاندانی کام تھا اور ہم نے یہ کام اب چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس طرح لوگ سوال جواب پر اتر آتے ہیں، بات کی تہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی پڑھائی کرنے میں بہت اچھی ہے، وہ بھی بہت خوش ہو کر اسکول جاتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا ہی تو خواب تھا کہ کم سے کم اب اس کا وہ خواب ادھورا نہیں رہا تھا۔ وہ بکری ابھی تک ہمارے پاس ہے۔ کبھی کبھی تو میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھ سے وہ عورت ملنے کے لیے آئی تھی، تو میں بھی اسے کہتی ہوں کہ اس کی بہت عزت کیا کرو، اس سے بہت پیار سے بات کیا کرو، اور یہ بات کبھی بھی کسی صورت کسی کو نہ بتانا کہ تم سے ملنے کے لیے کوئی عورت آتی ہے۔ میری بیٹی اب بڑی اور سمجھدار ہوتی جا رہی ہے، شاید اب اس کو بھی آہستہ آہستہ شک پڑ گیا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتاتی ہے۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ بس میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کو بھی اس مدد کا ذریعہ ضرور بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑا کرتا۔
آپ جیسا بھی سوچتے ہیں ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر اچھا سوچو گے تو تمہارے ساتھ بھی بہت اچھا ہوگا، اگر تم برا سوچو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسا بھی گمان رکھا جائے گا اللہ آپ کے لیے ویسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ آج کی میری یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، میں آپ کی منتظر رہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔